Hello guys, welcome back to my channel, that is CPA Nidhi Ladivar classes. Today we'll discuss the types of business environment. So let's proceed. So there are two types of business environment. One is internal environment and one is external environment. As the name suggests, internal environment का मतलब वो फैक्टर्स जो बिजनेस के इनसाइड होते हैं, जैसे कि बिजनेस की मैन पावर, कितना पैसा आप इन्वेस्ट करने वाले हो, मनी, कौन आपकी मैनेजर्स होंगे, क्या आपकी मार्केटिंग पॉलिसीज होगी. सो ये सारे फैक्टर्स होते हैं इंटरनल फैक्टर्स, इसलिए इनको कंट्रोल करना ईजी है क्योंकि ये किसी भी बिजनेस के हाथ में होता है. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होती है जो कि नाम ही बता रहा है कि जो बिजनेस के बाहर की इन्वायरमेंट है, जिसके अंदर आ जाएंगे कि उसके कस्टमर्स कौन है, आपके कौन कस्टमर्स होगा ये आपको नहीं पता, इस पर आपका कंट्रोल नहीं है. कितने कस्टमर्स होंगे आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते. कौन आपके एडिटर्स होंगे, क्या गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो कि बिजनेस को आपको इफेक्ट कर रहे होंगे, मतलब जो आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रहे होंगे. सो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे आपका कंट्रोल नहीं होता है. इसलिए क्या ज़रूरी है कि हम अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस को मॉडिफाई करें अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. सो यही होती है टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. So there are two types of business environment. One is internal environment and the one is external environment. So as the name suggests, internal environment consists of all the factors which are inside to the business, and external environment consists of all those factors which are outside the business. So such as man, that includes the managers and the employees, machinery, that is the technological factors, money, that is the capital investment, marketing strategies, and the management. These all consist of the internal environment. It all forms the internal environment. And external environment are divided into two parts, which we will discuss later on. That is micro and macro. Micro factors which are particular to only your business enterprise. Macro factors which are for the whole economy, which affect the whole economy, that is all the business enterprises in your country or in your state, whatever reference we are talking about. So at this point, just understand that internal environment is in the absolute control of the business, and external environment business has no control. So it is always good that business modifies its internal environment according to its external environment. And if the business do so, then the business will flourish in a positive way. So two types of business environment. One is internal and the other one is external. So let's see again that what is internal environment. Internal environment is a component of the business environment which is composed of various elements present inside the organization, which we already discussed that internal environment consists of factors जो कि business के अंदर होते हैं. So इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इन 6 फैक्टर्स के अंदर, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. मैन, which includes human resource, money, financial resources, marketing resources, machinery, that is physical assets, management structure, and then other miscellaneous factors. So let's see all these factors in details now. So the first factor, which is internal environment component, is human resource, that is man. So human resource means your employees. Employees can be of any kind, either working in your office or working in your factories or working in any of your company's department, either marketing department, distribution department, your office, your factory, anything. So एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है कि उसका ह्यूमन पावर कैसा है. अगर आपकी लेबर स्किल्ड है, उसको पता है कि उसको क्या काम करना है, देन आप सक्सेसफुल होंगे. बट अगर आपकी लेबर स्किल्ड नहीं है, आपकी मैनेजर्स एफिशिएंट नहीं है, आपके एम्प्लॉयज़ पंक्चुअल नहीं है या विलिंग टू वर्क नहीं है, देन ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट योर वर्किंग इन्वायरमेंट. सो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस बनाना है तो उसके ह्यूमन रिसोर्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. एंड ह्यूमन रिसोर्स हमारे एम्प्लॉयज़ एंड हमारी लेबर को लेके फॉर्म किया जाता है. तो ह्यूमन रिसोर्स पार्ट है हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट का, और इसीलिए ये एब्सोल्यूट पावर होता है किसी भी बिजनेस का कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं. कंट्रोल इन द वे कि हम उनको कैसे ट्रेन करें, कितना ट्रेन करें, हमें उन्हें कब हायर करना है, हम उन्हें कब टर्मिनेट करना है, कब सस्पेंड करना है. सो ऑल दिस पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द बिजनेस. दैट इज़ वाई ह्यूमन रिसोर्स इज द इंटरनल फैक्टर फॉर एनी बिजनेस एंटरप्राइज.
I guess money is the first thing which you will need if you want to start a business. So money forms the part of internal environment of the business. कि एक person अगर business start करना चाहता है तो he need the money for starting the business. So money can be either in the form of cash or in the form of any other investment like machine, capital, assets, anything. सो इंटरनल इन्वायरमेंट का जो फैक्टर है मनी, वो भी इन द कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंट होता है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है या आपके पास कितना मनी है कि आप उसको इन्वेस्ट कर सकें. सो अगर आपके पास में ज़्यादा मनी है, आपके पास में अच्छा इन्वेस्टमेंट है, सो ऑब्वियसली यू कैन बाय more technology, you can hire your employees which are very skilled, which have experience. But at the other hand, अगर आपके पास में मनी की शॉर्टेज है, then you have to compromise in all these areas. सो मनी ये भी एक फाइनेंशियल फैक्टर है और एक इंटरनल फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड इट कैन बी कंट्रोल टू सम एक्सटेंट. नाउ द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट फॉर इंटरनल इन्वायरमेंट कम्स इज मार्केटिंग रिसोर्सेज. सो मार्केटिंग रिसोर्सेज कैन बोथ बी द एक्सटर्नल फैक्टर एंड द इंटरनल फैक्टर. बट अगर अभी हम इंटरनल की बात करें तो मार्केटिंग रिसोर्सेज के इंटरनल फैक्टर में क्या क्या आ जाएंगे? आपकी मार्केटिंग टीम कैसी है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, आपकी सर्विसेज की क्वालिटी क्या है, आपका मार्केटिंग बजट कितना है और आपकी कंपनी की मार्केटिंग पॉलिसीज़ क्या है. सो ये पर्टिकुलर चीज़ें जो हो गई कि आपकी टीम, आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस की क्वालिटी डिसाइड करना, आपका बजट डिसाइड करना, ये सारी मार्केटिंग से रिलेटेड जो इश्यूज है, दीज आर इंटरनल टू ऑर्गेनाइजेशन, सो दे आर पार्ट ऑफ योर इंटरनल इन्वायरमेंट. बट अगर हम बात करें कि मार्केटिंग आपको किन कस्टमर बेसिस पे किस कस्टमर ग्रुप के लिए करनी है, आपको मार्केटिंग के लिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स लेने हैं, सो ये सब पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जाएंगे जो हम बाद में पढ़ेंगे इन द माइक्रो एंड मैक्रो की कॉन्टेक्स्ट में. सो अभी फॉर इंटरनल इन्वायरमेंट, मार्केटिंग रिसोर्सेज विच आर इंटरनल टू योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स द पार्ट ऑफ योर इंटरनल इन्वायरमेंट. Physical assets and facilities, which I already described you in the heading of money, because money can be in the form of cash and in the investment. So if it's other than the cash, then it comes in your physical asset and facility. So that is also the part of your internal organization or internal environment. Now the next one is management structure and nature. आपके ऑर्गेनाइजेशन के कितने हायरार्किकल लेवल्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस करेंगे आपकी डिसीजन मेकिंग को. मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, देन उनके अंडर कौन है, फिर उनके अंडर कौन है. सो जितनी ज़्यादा हायरार्किकल लेवल्स होगा, इट मीन्स आपकी डिसीजन मेकिंग उतनी ही ज़्यादा डिवाइडेड है, आपकी अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उतनी ही ज़्यादा डिवाइडेड है. सो एक रैपिड इन्वायरमेंट के अंदर आपको चाहिए कि आप इंस्टेंट डिसीजन लें. सो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो स्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, वो भी एकदम रैपिड डिसीजन मेकर्स से बना हुआ है. अगर वो रिजिड होगा जिसके अंदर एक ऑर्डर पास हुआ, फिर दूसरे को अप्रूव करना पड़ेगा, फिर तीसरे को अप्रूव करना पड़ेगा, फिर चौथे को अप्रूव करना पड़ेगा, देन इट विल टेक टाइम और आप इतना रैपिडली डिसीजंस नहीं ले सकते. सो आज के सिनेरियो के अंदर ज़रूरी है कि आपका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऐसा हो जो कि रैपिड डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करे अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट. सो जैसे भी सपोज करो कोविड टाइम्स के अंदर अभी क्या हुआ कि अभी जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको फिजिकली प्रेजेंट रहने की ज़रूरत नहीं है ऑफिस के अंदर, वर्क फ्रॉम होम का भी कल्चर इंक्रीज हुआ. सो ऑल दीज फैक्टर्स कि आपका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो फिजिकली प्रेजेंट होंगे या फिर आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो अपनी वर्किंग स्पेस से दूर भी काम कर सकते हैं. ऑल दीज थिंग्स जो है वो पार्ट होती है आपकी इंटरनल इन्वायरमेंट की और ये आपकी इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करती है. Now there are so many other miscellaneous factors which are part of the internal environment. These we will discuss in another video. So till then, please subscribe my channel, follow my channel and share it with your friends. If you guys have any questions, any queries or any particular topic on which you want me to make a video, then please leave me a comment. I will try my best to make the videos on those topics and to reply to your questions or your queries. Till then, please watch my channel and please subscribe my channel.